before sunrise. Remember, those who awaken before sunrise and hello devotees. Today, May 12, 2026, is Tuesday, the 10th day of the month of Jashta. On this auspicious occasion, be sure to perform a special ritual for Lord Hanuman using 3 cloves. In the evening, when you perform the evening Aarti, light a lamp at your main entrance and add 5 cloves to it. It is believed that lighting a lamp with 5 cloves in the evening brings you the blessings of Lord Rama, Gweme, and the special grace of Lord Hanuman. This will fulfill all your wishes and your home will be filled with happiness. By happiness, you will soon become wealthy and prosperous. Because this time, May 12, 2026, Tuesday, the month of Jashta, and the 10th day of the month of Jashta are creating many auspicious Mahasandhyas. Therefore, perform this special ritual on this day with complete devotion and unwavering faith, so that Lord Hanuman is immediately pleased and your poverty is eradicated. Don't forget to light a lamp at your main entrance with 5 cloves in the evening, by Tianata time. This is the divine lamp that keeps negativity and evil spirits away from your home, preventing financial troubles and warding off obstacles like illness and grief. Lighting this lamp at the main entrance during the evening Aarti is essential because Panditji has explained its significance in detail in his recent narration. So devotees, we will provide you with all the information in this video about how to perform this remedy, when to perform it, and where to perform it, as well as the special things to keep in mind during the ritual. So devotees, let us learn the precautions you must take, because if you make any mistake without following these precautions, poverty may prevail in your life instead of benefit. Instead of benefit. It has been observed that when a person performs this remedy with complete devotion, miraculous events immediately begin to occur in their life, opening the way for wealth to flow. This day is so special that even the smallest remedy performed on this day yields many times greater results than on other days. Wishes that cannot be fulfilled with elaborate rituals can be fulfilled with just this simple remedy today, May 12, 2026, on Tuesday, Dashami Tithi, in the month of Jashta day. Devotees, listen carefully to the secret remedy to be performed this morning that can change the course of your life. On the morning of May 12th, get out of bed during Brahma Muhurta about an hour and a half before sunrise. Remember, those who awaken before sunrise and remember the Lord acquire the power of a thunderbolt in their resolve. After bathing, wear clothes that are dear to Lord Hanuman, such as vermilion, bright red, or saffron. Avoiding black or blue is mandatory today. Purify the northeastern corner, northeast or prayer area of your home with Ganga water. Place a sandal चंदन की या लकड़ी की चौकी स्थापित करें और उस पर अष्टदल कमल की आकृति बनाकर लाल मखमल का कपड़ा बिछाएं। अब बजरंगबली की ऐसी प्रतिमा रखें जिसमें वे आशीर्वाद दे रहे हों या प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हों। अब उस गुप्त सामग्री को तैयार करें। आपको लेने हैं 3 साबुत लौंग। ये लौंग खंडित नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर का फूल टोपी सुरक्षित होना चाहिए। ये 3 लौंग 3 शक्तियों के प्रतीक हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। एक मिट्टी का नया दीपक लें और उसमें गाय का शुद्ध देसी घी भरें। अब उन 3 लौंग के दानों को अपने दाएं हाथ की हथेली में रखें और बायां हाथ उसके ऊपर ढक लें। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और अपनी आंखें मूंद कर उस कष्ट को याद करें जो आपको वर्षों से परेशान कर रहा है। मन ही मन कहें, हे पवनपुत्र, ये 3 लौंग मेरे 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक के प्रतीक हैं। इन्हें स्वीकार कर मुझे हर संकट से मुक्त करें। इसके बाद उन लौंग को दीपक में डालें और रुई की लंबी बत्ती का प्रयोग करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। जैसे ही ज्योति प्रज्वलित हो, आपकी दृष्टि ज्योति की लौ पर टिकी होनी चाहिए। अब ओं श्री हनुमते नमः का केवल जाप ही नहीं करना, बल्कि इस मंत्र को अपनी श्वासों में उतारना है। कम से कम 108 बार इसका जाप करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार करें कि आपका स्वर घर के कोने कोने तक गूंजे। मान्यता है कि ज्येष्ठ के बड़े मंगल पर जब लौंग की सुगंध घी के साथ मिलकर वातावरण में फैलती है, तो घर के पितृदोष और वास्तु दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। यह दीपक तब तक प्रज्वलित रहने दें जब तक घी स्वतः समाप्त न हो जाए। शाम के समय का रहस्यमयी और शक्तिशाली महाउपाय। भक्तों, अब जानते हैं उस संध्याकालीन महाप्रयोग के बारे में जो दरिद्रता के द्वार बंद कर लक्ष्मी के द्वार खोलता है। जैसे ही आकाश में लाली छाने लगे और गोधूली वेला का प्रारंभ हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। मुख्य द्वार केवल लकड़ी या लोहे का ढांचा नहीं है, यह आपके भाग्य का प्रवेश द्वार है।
इसे ताजे जल से धोकर वहां हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करें। अब एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। इसमें सरसों के तेल का प्रयोग विशेष रूप से बताया गया है, क्योंकि सरसों का तेल शनिदेव और हनुमान जी दोनों को प्रिय है, जो शत्रुओं का नाश करता है। इस तेल में 5 लौंग के दाने डालें। ये 5 लौंग पंचतत्वों को संतुलित करने का कार्य करते हैं। जब आप इन 5 लौंग को दीपक में डालें तो मन में ये भाव रखें कि आप अपने घर की 5 प्रमुख समस्याओं, कर्ज, बीमारी, कलह, बेरोजगारी और नजर दोष को इस अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए और दीपक को मुख्य द्वार की दाहिनी दिशा, जब आप घर से बाहर निकल रहे हों, में रखें। इस दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। यह दीपक जलाते समय श्री राम जय राम का संकीर्तन करें। पंडितों का मत है कि दशमी तिथि को जब संध्या काल में मुख्य द्वार पर लौंग का धुआं उठता है तो उस घर की देहरी को लांघकर कोई भी नकारात्मक शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। यह उपाय करते समय मौन रहना अनिवार्य है। दीपक रखने के बाद सीधे अपने घर के मंदिर में जाएं और वहां कपूर से हनुमान जी की आरती करें। ये 5 लौंग वाला दीपक आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक झटके आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं इस उपाय से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सावधानियां यथावत रहेंगी। एक अत्यंत अद्भुत, विस्तृत और भावपूर्ण पौराणिक कथा। भक्तों, इस उपाय की महिमा को समझने के लिए एक ऐसी कथा सुनिए जो आपकी आंखों में आंसू और मन में अटूट विश्वास भर देगी। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक अत्यंत सदाचारी लेकिन दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसकी पत्नी और नन्हा पुत्र भूख से व्याकुल होकर अक्सर बिना भोजन के ही सो जाते थे। देवदत्त दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन कभी उसे मुट्ठी भर अनाज मिलता तो कभी वो भी नहीं। दुनिया के ताने और अपनी संतान की भूख देखकर देवदत्त का हृदय छलनी हो जाता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन था। देवदत्त एक वृक्ष के नीचे हताश बैठा था। तभी वहां से परम ज्ञानी मार्कंडेय ऋषि गुजरे। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और विलाप करते हुए बोला, ऋषिवर, क्या मेरे भाग्य में केवल दरिद्रता ही लिखी है? क्या मेरी संतान कभी भरपेट भोजन नहीं कर पाएगी? ऋषि मार्कंडेय ने करुणावश उसे देखा और कहा, पुत्र, भाग्य को कर्म और अटूट श्रद्धा से बदला जा सकता है। आज ज्येष्ठ दशमी का महासंयोग है। आज शाम तू अपने घर के उस द्वार पर, जहां से तू रोज खाली हाथ लौटता है, 5 लौंग वाला दीपक जलाना और हनुमान जी को अपना दुख सौंप देना। पर याद रखना, उस समय तेरे मन में संदेह की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। देवदत्त ने अपनी पत्नी के पुराने चांदी के कंगन बेचकर तेल और लौंग का प्रबंध किया। शाम हुई, घर में अंधेरा था। देवदत्त ने कांपते हाथों से मुख्य द्वार पर दीपक जलाया। जैसे ही उसने 5 लौंग तेल में डाली, उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने पुकारा, हे अंजनी पुत्र, मैं आपको कुछ अर्पण करने योग्य नहीं हूं। ये 5 लौंग ही मेरा सर्वस्व हैं। यदि आप नहीं सुनेंगे तो ये ब्राह्मण परिवार आज अपना प्राण त्याग देगा। कहते हैं भक्तों, भक्त की पुकार जब हृदय की गहराई से निकलती है तो सिंहासन डोलने लगता है। उसी समय उस राज्य के महाराज, जो भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले थे, रास्ता भटककर देवदत्त की कुटिया के पास पहुंचे। उस अंधेरी गली में केवल देवदत्त के द्वार पर जलता वो दिव्य दीपक एक ज्योतिपुंज की तरह चमक रहा था। राजा उस अलौकिक प्रकाश से आकर्षित होकर वहां रुके। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार अत्यंत अभाव में भी प्रभु की भक्ति में लीन है। राजा ने अगले ही दिन देवदत्त को राजदरबार में बुलाया और उसे राज्य का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। उसे स्वर्ण मुद्राएं और रहने के लिए भव्य भवन दिया गया। लेकिन भक्तों, चमत्कार केवल धन का नहीं था। उस रात देवदत्त को साक्षात हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उनका स्वरूप इतना विशाल और तेजोमय था कि सूर्य की प्रभा भी फीकी लगने लगी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र देवदत्त, तूने जो 5 लौंग जलाए वे तेरे